अपनी प्रीवियस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਅਪ ਟੂ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਓਹਮਸ ਲਾਅ ਤੱਕ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੰਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस कंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ A क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ t ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ q ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ q upon t ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ। ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਮੀਨਸ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ, ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ टाइम ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ q ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਥਰੂ ਐਨੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ q upon t। ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਚਾਰਜ Q ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਈਦਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਪੋਜ਼ E ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ E ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੋਜ਼ N ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ Q ਨੂੰ ਆਪਾਂ NE ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੀਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਚਾਰਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ I ਐਵਰੇਜ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q upon T। ਐਵਰੇਜ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ I ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ। I ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ dt ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ dq ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਥਰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 0 to 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਕਰੰਟ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ 0 to 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਚਾਰजेस ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੂਲਮ। I is equal to Q upon T। ਚਾਰਜ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੂਲਮ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਪੀਅਰ। ਤਾਂ ਐਂਪੀਅਰ is equal to ਕੂਲਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਕਰੰਟ ਦੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਪੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਂਪੀਅਰ ਕੂਲਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹੀ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੂਲਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁੱਛਣ ਕਿਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਮੇਨਲੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਐਂਪੀਅਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਕੂਲਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੂਲਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ, ਕਰੰਟ ਦੇ। ਕਰੰਟ ਦੇ SI ਯੂਨਿਟਸ ਵੈਸੇ ਐਂਪੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਐਂਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੂਲਮ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। जी नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट और वी कैन से करंट। सिंपली अगर करंट ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵੀ,
ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰजेस ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਰਿਪੈਲ ਹੋ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਰਿਪੈਲ ਹੋ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਊ ਟੂ ਫਲੋ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਦੇ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ। ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕੈਰੀਅਰਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰੰਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਮੀਨਸ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਕਰੰਟ ਵਰਡ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਜ਼ डिफाइंड एज कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो यदि डायरेक्शन आपां नूं करंट दी डायरेक्शन दिंदी है, मतलब नैगेटिव चार्जेस इलैक्ट्रॉन्स दी डायरेक्शन नहीं आपां नूं करंट दी डायरेक्शन दिंदी। ये जदों भी आपां इलैक्ट्रॉन्स दे फ्लो दी गल करदे हां उसनूं आपां इलैक्ट्रॉन करंट बोलांगे, बट जदों भी आपां पॉजिटिव चार्जेस दे फ्लो दी गल करदे हां तां उत्थे आपां कन्वेंशनल करंट दी प्लेस ते कल्ला करंट वर्ड ही यूज करदे हां। तां करंट मीनस रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, तो आपां नूं कन्वेंशनल करंट दी डायरेक्शन ही करंट दी डायरेक्शन दिंदी है। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੂ लो पोटेंशियल मूव कर रहे हैं। तो अपने को जो करंट की डायरेक्शन है वो अपने को सॉरी इत्थे आएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होएगी, या आप ये भी कह सकते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कि जिस डायरेक्शन दे विच पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन च होएगी, या फिर आप ये भी कह सकते हैं इन दी डायरेक्शन ओपोजिट टू फ्लो ऑफ नैगेटिव चार्जेस कि जिस डायरेक्शन दे विच नैगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उस तो ओपोजिट डायरेक्शन दे विच होएगी करंट दी डायरेक्शन। तो अपने को इन्हां दे विचों भी MCQ बन सकता है कि विच ऑफ दीज इज नॉट रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट अगर तुहानूं ये क्लीयर है कि डायरेक्शन ऑफ करंट आपां पॉजिटिव चार्जेस दे मोशन वाली डायरेक्शन च ही लैके चलदे हां तां आपां उत्थे आराम नाल ऑप्शन टिक कर सकते हैं, क्योंकि उसनूं आपां किसी भी वे नाल रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन्हां तीनों वेज दे विचों। हाँ जी, नैक्सट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हुंदी है? देखो, अपने कोल कोई भी सपोज आपां कोई कंडक्टर लिया, मैटल कंडक्टर ले लिया, इस मैटल कंडक्टर दे विच पॉजिटिव आयन्स भी होणगे ते फ्री इलैक्ट्रॉन्स भी होणगे। तां फ्री इलैक्ट्रॉन्स दे अगर आपां मोशन दी गल करिए, देखो कंडक्टर दे विच जदों भी इलैक्ट्रॉन्स जां पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं तो उन्हां दी मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे विच उदों ही हुंदी है, नैगेटिव टू पॉजिटिव उदों ही होएगी जदों आपां बैटरी नाल कनैक्ट करांगे। तो आपां बैटरी नाल कनैक्ट कीता, जो इलैक्ट्रॉन्स ने वो नैगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना स्टार्ट कर देणगे। नैगेटिव टू पॉजिटिव मीनस ओपोजिट टू इलैक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलैक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा पॉजिटिव टू नैगेटिव हुंदा है ते इलैक्ट्रॉन्स नैगेटिव टू पॉजिटिव मूव कर रहे हैं। तो इलैक्ट्रॉन्स इलैक्ट्रिक फील्ड की ओपोजिट डायरेक्शन दे विच मूव करना स्टार्ट कर देंगे। हुण जदों इलैक्ट्रॉन मूव करता है ये अपने पाथ दे विच पॉजिटिव आयन्स नाल भी कोलाइड कर सकता है, नैगेटिव इलैक्ट्रॉन्स नाल भी कोलाइड कर सकता है। मीनस ये स्ट्रेटली मूव नहीं करेगा नैगेटिव टू पॉजिटिव, ये रस्ते विच कोलिजन्स हुंदियां जाणगियां इहदियां। तां जदों कोलिजन्स होणगियां तां इलैक्ट्रॉन एक जिगजैग पाथ ते मूव करेगा। इस तरीके नाल ये नहीं हैगा कि इलैक्ट्रॉन अपने को स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा? बिकॉज रस्ते दे विच की हुंदियां जाणगियां, कोलिजन्स हुंदियां जाणगियां। तां इलैक्ट्रॉन अपने पाथ दे विच कोलिजन्स करदा होया जिगजैग पाथ दे नाल मूव करदा है। हुण ਇਹ रैंडमली अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है तो अपनी वेलोसिटी भी, बिकॉज जदों भी स्ट्राइक करता है तो उसकी वेलोसिटी ते भी इफेक्ट पएगा। तो अगर आपां कोई इलैक्ट्रॉन की वेलोसिटी पूछे कि इस इलैक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी है तो आपां तो दस नहीं सकते।
वैसे तो नहीं ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਰ ਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਤਾਂ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਸੇ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਫ फ्री इलैक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर कि जेड़ा फ्री इलैक्ट्रॉन किसी कंडक्टर दे इनसाइड है उसकी एवरेज वैलोसिटी नूं आपां की कहने आ ड्रिफ्ट वैलोसिटी। तो एवरेज वैलोसिटी ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन इनसाइड दी कंडक्टर इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वैलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वैलोसिटी ये एवरेज वैलोसिटी है। हुण इसका एक्सप्रैशन किवें फाइंड आउट करना है आपां, देखो ये जो भी चार्ज है ये इलैक्ट्रिक फील्ड दी इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब जदों आपां बैटरी कनैक्ट की तो उस टाइम ते इलैक्ट्रॉन के मोशन की आपां गल कर रहे हैं। तो सब तो पहला देखो जो इलैक्ट्रॉन के उपर फोर्स होएगा, इलैक्ट्रॉन के उपर इस इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच जो फोर्स लगेगा उसनों आपां किवें डिनोट करांगे E इंटू ई दे नाल। देखो ये पता है ना सबनों जो इलैक्ट्रिक फील्ड हुंदा है वो फोर्स अपॉन चार्ज दे इक्वल हुंदा है। तो फोर्स इज इक्वल टू इलैक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। चार्ज अपने कोल ई दे नाल डिनोट कर रहे हैं आपां, ई इलैक्ट्रिक फील्ड है, एफ इज फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू इलैक्ट्रिक चार्ज इंटू इलैक्ट्रिक फील्ड। दैन अपने कोल जो एक्सेलरेशन हुंदी है, एक्सेलरेशन दा फॉर्मूला की हुंदा है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। बिकॉज अपन ये भी पता है भी जो फोर्स हुंदा है वो मास इंटू एक्सेलरेशन हुंदा है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई फोर्स अपॉन मास। तो अगर आपां फर्स्ट इक्वेशन दे विचों सैकेंड इक्वेशन दे विच वैल्यू पुट कर दिए तो अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू की आ जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ई इंटू इलैक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम। हुण आपां नूं ये भी पता है जो एक्सेलरेशन हुंदी है वो फाइनल वैलोसिटी माइनस इनिशियल वैलोसिटी अपॉन टाइम टेकन दे इक्वल हुंदी है। तो अगर आपां इत्थे गल करिए, इत्थे फाइनल वैलोसिटी तो है VD मीनस ड्रिफ्ट वैलोसिटी, इनिशियल वैलोसिटी है अपने कोल 0 क्योंकि जदों आपां बैटरी नहीं कनैक्ट कीती सी उदों अपने कोल इन्हां दी नैट वैलोसिटी की सी 0 क्योंकि उस टाइम ते बिल्कुल रैंडम डायरैक्शनस दे विच मूव करदे ने जो चार्जेस हुंदे ने। टी नूं आपां टो नाल डिनोट करदे हां। टो की है अपने कोल रिलैक्सेशन टाइम। हुण देखो रिलैक्सेशन टाइम की हुंदा है, रिलैक्सेशन टाइम हुंदा है अगर चार्ज मूव कर रहा है, इलैक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इत्थे आके वो किसी भी पार्टिकल दे नाल हिट कर गया आइदर पॉजिटिव और नैगेटिव। हिट करन तो बाद नैक्सट पार्टिकल नाल आके इत्थे हिट कर रहा है। तो इन्हां दोनों कोलिजन्स दे विच जो टाइम है इसनूं आपां कहने आ रिलैक्सेशन टाइम। मीनस ये तां नहीं कि हिट कीता नाल दी नाल किसी होर पार्टिकल नूं हिट करूगा, दो कोलिजन्स दे विच कोई टाइम होएगा उस टाइम नूं आपां कहने आ रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। तो अपने कोल टाइम कितना आपां टो नाल डिनोट करांगे एंड व्हाट इज टो रिलैक्सेशन टाइम। तो अपने कोल एक्सेलरेशन की वैल्यू आपां थर्ड इक्वेशन दे विच इत्थे पुट कर दांगे। एक्सेलरेशन की वैल्यू है E इंटू कैपिटल E अपॉन M VD अपॉन टो। तो अपने कोल VD की वैल्यू की आ जाएगी E इंटू E अपॉन M इंटू टो। तो ये अपने को एवरेज वेलोसिटी और वी कैन से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है E चार्ज ऑन द पार्टिकल, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, M इज मास ऑफ द पार्टिकल एंड टो इज द रिलैक्सेशन टाइम। तो जो ये रिलैक्सेशन टाइम है ये टैंपरेचर दे इनक्रीज होने दे नाल डिक्रीज होएगा। तो ये टैंपरेचर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि जिवें जिवें टैंपरेचर इनक्रीज होएगा तो इहदा मोशन इनक्रीज होएगा, पार्टिकल का मोशन इनक्रीज होएगा तो वो कोलाइड जल्दी जल्दी करेगा। जिवें मोशन इनक्रीज हो गया इत्थे हिट किता नाल दी नाल नैक्सट पार्टिकल नूं हिट करेगा बिकॉज टैंपरेचर इनक्रीज होने नाल पार्टिकल का मोशन इनक्रीज हुंदा है। तो मोशन इनक्रीज होया टैंपरेचर दे इनक्रीज होने दे नाल तो उहदा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होएगा मीनस टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स डिक्रीज होएगा। तो जो ये टो है ये टाइम दे टैंपरेचर दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदा। हाँ जी, तो स्केलर फॉर्म से ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी अगर आप वैक्टर फॉर्म की गल करिए तो आप VD वैक्टर इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल E वैक्टर टो अपॉन M बिकॉज बाकी तो सारे स्केलर क्वांटिटीज ही ने। इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्टर क्वांटिटी है तो जो अगर तो पॉजिटिव चार्ज की गल करिए E की वैल्यू पॉजिटिव दे विच होएगी
ਤਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰजेस ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मूव करते हैं। अगर जो चार्ज है वो नैगेटिव है, जिवें आपां इलैक्ट्रॉन्स की गल करिए, अगर चार्ज नैगेटिव है तो इत्थे एक नैगेटिव साइन आ जाएगा, मीनस जो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन होएगी उस तो ओपोजिट डायरैक्शन होएगी ड्रिफ्ट वैलोसिटी की, बिकॉज एक नैगेटिव साइन आ जाएगा। तो इत्थों ही पता चलता है कि जो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन है उस तो ओपोजिट डायरैक्शन होएगी ड्रिफ्ट वैलोसिटी की जदों आपां इलैक्ट्रॉन्स की गल करते हैं। आपां यही चीज़ कही सी कि जदों आपां इस कंडक्टर की गल करते हैं तो जो इलैक्ट्रॉन्स ने वो इलैक्ट्रिक फील्ड की ओपोजिट डायरैक्शन दे विच ड्रिफ्ट करनगे। तो इत्थों ये पॉइंट क्लीयर होना चाहिए कि इन केस ऑफ इलैक्ट्रॉन्स जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरैक्शन है वो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन के ओपोजिट होएगी, एंड इन केस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरैक्शन इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन दे विच ही होएगी। हाँ जी, नैक्सट आपां गल करते हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलैक्ट्रिक करंट। हुण आपां ड्रिफ्ट वेलोसिटी ते इलैक्ट्रिक करंट का रिलेशन करना है वी डी एंड आई का रिलेशन फाइंड आउट करना है। सपोज अपने कोल कोई भी कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, तो एल की है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल आपां लैके चलने हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन आपां लैके चलते हैं ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, L is the length of conductor, A is area of cross section। Suppose ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰ यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ n ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ। n means number of electrons per unit volume, ਕਿ ਇੱਕ यूनिट वॉल्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ n ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ, ठीक है। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ इस दी टोटल वॉल्यूम होएगी किन्नी, आपां नूं पता है जो वॉल्यूम है वो एरिया इंटू लेंथ दे इक्वल हुंदी है। ते एरिया आपां ए लैके चले आ, लेंथ आपां एल लैके चले आ, तां अपने कोल वॉल्यूम की हो जाएगी ए इंटू एल, ठीक है। उस तो बाद अगर n नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ने तां इस पूरे वॉल्यूम दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स होणगे, टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन V, पूरी वॉल्यूम दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन्स हो गए n इंटू ए एल, बिकॉज आपां एक यूनिट वॉल्यूम दे इलैक्ट्रॉन्स नूं पूरी वॉल्यूम नाल मल्टीप्लाई करता। ये तां टोटल नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स ने। अगर एक पार्टिकल ते चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन, एक इलैक्ट्रॉन ते चार्ज अपने कोल किन्ने E, तो हम नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स भी पता है, आपां नूं एक इलैक्ट्रॉन ते चार्ज भी पता है, तो आपां फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना होएगा इस वॉल्यूम दे विच। टोटल चार्ज इन वॉल्यूम V इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन, मीनस NaLe। आपां पूरे नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स नूं एक इलैक्ट्रॉन दे चार्ज नाल मल्टीप्लाई करता, तो ये अपने कोल की आ गया टोटल चार्ज। सपोज आप इसनूं क्यू नाल डिनोट करते हैं, ठीक है। ये टोटल चार्ज है अपने कोल, टोटल चार्ज। हुण आपां फाइंड आउट करते हैं, आपां ने फाइंड आउट करना है पहला टाइम टेकन, कि टाइम कितना लगेगा, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू, टाइम आपां नूं पता है, आपां नूं ये चीज़ पता है भी जो अपने कोल टाइम हुंदा है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी दे इक्वल हुंदा है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ਤਾਂ इस टोटल चार्ज ਨੂੰ फ्लो होने ਦੇ ਲਈ टाइम कितना लग रहा होएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस किस दे इक्वल है, एल दे। एक टर्मिनल तो दूजे टर्मिनल तक अगर इलैक्ट्रॉन्स आ रहे ने तो टोटल एल डिस्टेंस कवर करके आ रहे ने। बट वेलोसिटी किन्नी दे नाल मूव करते हैं, वेलोसिटी आपां इलैक्ट्रॉन्स की किहड़ी लैंदे हुंदे आ, एवरेज वेलोसिटी मीनस ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपां डिस्कस किया कि जदों भी आपां किसी कंडक्टर दे विच इलैक्ट्रॉन दे मोशन की गल करते हैं तो उसकी वेलोसिटी आपां लैके चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल। तो T इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी, ये अपने को आ गया सैकेंड एक्सप्रैशन। हुण आपां फाइंड आउट की करना है, आपां फाइंड आउट करना है करंट। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम टेकन। We know the value of charge n into A into L into E. We know the value of time taken L upon VD। अगर आप इन्हों सॉल्व करांगे L दे नाल तां देखो L कैंसल आउट हो जाएगा, अगर आप इन्हों सॉल्व करिए तो अपने को n
इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी, ये अपने को करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अपने को रिलेशन हो गया करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी आर रिलेटेड बाय दिस एक्सप्रैशन आई इज इक्वल टू एन ए ई इंटू वी डी। तो अगर ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ आई ਐਂਡ वी डी। कई बार ਆਪਾਂ ਨੂੰ वी डी भी नहीं पता ਹੁੰਦਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ वी डी फाइंड आउट ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ वी डी ਕਿਵੇਂ फाइंड आउट ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ फाइंड ਕਰੰਟ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਫਲੋਇੰਗ ਥਰੂ ਅ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। करंट की वैल्यू अपन पता है, हुणे आप फाइंड आउट की है एन इंटू ए इंटू ई इंटू वी डी। तो अपने को अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो एरिया के नाल एरिया की वैल्यू कट जाएगी, तो अपने को करंट डेंसिटी की आ जाएगी एन इंटू ई इंटू वी डी। तो ये अपने को करंट डेंसिटी का एक्सप्रैशन है। इनू आप न्यूमेरिकल्स भी यूज कर सकते हैं, अपन कोई भी 3 वैल्यूज दे के 4th वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो करंट की वैल्यू आप इत्थे जिवें जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए है, करंट की वैल्यू आप चार्ज के टाइम तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकली किवें भी यूज हो सकता है, बट अपन एक्सप्रैशन क्लीयर होना चाहिए। आई के यूनिट्स की होंगे एम्पीयर, एरिया के यूनिट मीटर स्क्वेयर, तो करंट डेंसिटी के यूनिट्स की हो गए एम्पीयर पर मीटर स्क्वेयर। तो ये अपने को स्केलर फॉर्म है करंट डेंसिटी की, वैक्टर फॉर्म भी आप आगे डिस्कस करांगे। करंट डेंसिटी तो बाद नैक्सट टॉपिक जो अपना है वो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का एक्सप्रैशन ये होंगे डेल वैक्टर डॉट जे वैक्टर प्लस डी रो अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी का फॉर्मूला है, बट ये किवें डिराइव होएगी आप डेरिवेशन भी करांगे। बट पहला कल्ले कल्ले टर्म का मीनिंग समझते हैं। व्हाट इज जे वैक्टर? जे वैक्टर इज करंट डेंसिटी। डेल वैक्टर डॉट जे वैक्टर मीनस अपने को डाइवर्जेंस ऑफ जे वैक्टर है ये। डी रो अपॉन डी टी, रो की होंगी अपने को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड डी रो अपॉन डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये अपने को कंप्लीट एक्सप्रैशन इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। हुण आपां इसदी डेरिवेशन करांगे। देखो अपने को कोई भी वॉल्यूम है, इसनूं पूरे एक एस सरफेस ने एनक्लोज किया हुआ है। मतलब सपोज कोई भी क्यूब या क्यूबॉइड हो सकता है, उसका सरफेस एरिया आप एस लै लीए तो वी वॉल्यूम लै लीए, तो पूरे एस सरफेस ने वी वॉल्यूम इनक्लोज किया हुआ है। ठीक है, इस दे विचों सपोज आप एक सरफेस लिया जिसका एरिया डी एस है, उस चों कुछ चार्ज आउटवर्ड फ्लो हो रहे हैं। डी एस एरिया दे विचों कुछ चार्ज आउटवर्ड फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, इन्नी चीज क्लीयर है, डायग्रामेटिकली ये चीज समझ आ रही है। हुण आपां डेरिवेशन करते हैं। सब तो पहला तो देखो आपां नूं ये पता है कि करंट डेंसिटी कादे इक्वल हुंदी है? करंट डेंसिटी हुंदी है अपने कोल करंट अपॉन एरिया दे इक्वल। तो अगर आपां करंट फाइंड आउट करिए इत्थों दा करंट कादे इक्वल होएगा? जे वैक्टर डॉट ए वैक्टर। बट अगर आपां नूं टोटल एरिया ना पता होगे, आपां नूं एक छोटे जे सरफेस एरिया दे विच करंट डेंसिटी की वैल्यू पता है, तो अपने को जे वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू डी आई वैक्टर होएगा, डी आई होएगा। बट अगर अपने टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो अपने को की करना पएगा? आपां उस सरफेस के अलोंग की करनी पएगी? इंटीग्रेशन करनी पएगी। मतलब आपां इस डी एस सरफेस का पता है, आपां पूरे सरफेस के विचों करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आपां की करांगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ जे वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर इज इक्वल टू आई। उस तो बाद अपने को की हुंदा है, देखो अपन ये पता है भी जो अपने को रो हुंदी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो अपने को कादे इक्वल हुंदी है? क्यू अपॉन वी दे। तो आप क्यू की वैल्यू किवें फाइंड आउट कर सकते हैं? रो इंटू वी करके। बट अगर अपन थोड़ी जी वॉल्यूम पता है, अपन डी वी वॉल्यूम दे विचों रो की वैल्यू पता है, तो आप टोटल चार्ज किवें फाइंड आउट कर सकते हैं? अगेन आपां इंटीग्रेशन करके पूरी वॉल्यूम दे अलोंग इंटीग्रेशन करके आपां क्यू दी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण नैक्सट अपने कोल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स अपने को चार्ज की रहेगा? कंजर्व्ड रहेगा। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड। ये आपां जदों चार्ज कीता सी उहदी प्रॉपर्टीज दे विच डिस्कस कीता सी। तां अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
reduction of charge per unit time through a volume must be equal to करंट। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, देखो अगर ਕਿਸੇ भी वॉल्यूम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ पर्टिकुलर टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਆਊਟਵਰਡ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ भी पर्टिकुलर टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ वॉल्यूम ਚੋਂ ਚਾਰਜ ਆਊਟਵਰਡ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਆਊਟਵਰਡ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। I is equal to माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि चार्ज का आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, मतलब चार्ज आउटवर्ड फ्लो हो रहा है, चार्ज बाहर जा रहा है, वो चार्ज घटिया नहीं, कंजर्व रह रहा इन दी फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। तो अपने को चार्ज इज इक्वल करंट इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि चार्ज आउटवर्ड फ्लो हो रहा है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫਰਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ J ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਵੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ d ਅਪੋਨ dt। Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, v ਰੋ ਇਨਟੂ dv। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ Q ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਟੋਕਸ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ, ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, गॉस थ्योरम ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕੱਢੀਏ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਵੈਕਟਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੈਗਰਲ ਆਫ ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ a ਵੈਕਟਰ dv। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਗੌਸ ਡਾਈਵਰਜੈਂਸ, ਸਟੋਕਸ ਥਿਊਰਮ, ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਥਿਊਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਿਊਰਮਸ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੌਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। J ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਥਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਫੋਰਥ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫੋਰਥ ਇਨ ਥਰਡ, ਫੋਰਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, J ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ ds ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ J ਵੈਕਟਰ dv ਅਲੋਂਗ ਵੋਲਿਊਮ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ d ਬਾਈ dt ਆਫ v rho dv along v। del vector dot j vector dv along volume v is equal to minus d by dt of rho dv along volume v। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਟਿਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੈਗਰਲ ਹੀ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੈਕਟਿਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ j ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ d ਰੋ ਅਪੋਨ dt ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੈਗਰਲ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਵੋਲਿਊਮ ਇੰਟੈਗਰਲ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਲੀਟ ਟਰਮ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ j ਵੈਕਟਰ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ j ਵੈਕਟਰ ਪਲੱਸ d ਰੋ ਅਪੋਨ dt ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਲ ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ j ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ d ਰੋ ਅਪੋਨ dt। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਓਹਮਸ ਲੋ। ਓਹਮਸ ਲੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੀਨਸ opposition offered by conductor to flow of charges। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰजेस ਫਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਨਸ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੋਈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਓਬਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਜੋ ਕਿ ਫਲੋ ਆਫ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ। ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਮੀਨਸ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੀਨਸ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ, opposition offered by conductor। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਹਮਸ ਲੋ।
ओहम्स लॉ की हुंदा है, अगर आपां किसी भी कंडक्टर दे अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया आपां ने बाय कनैक्टिंग बैटरी विद दैट कंडक्टर, अगर आपां पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसदे विचों करंट फ्लो हुंदा है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपां अप्लाई कर रहे हैं वो किसते डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा, करंट दे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू करंट कीपिंग टैंपरेचर कांस्टेंट। मतलब ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं ओहम्स लॉ, आप कांस्टेंट टैंपरेचर ते ही डिस्कस करते हैं, ये वैलिड ही कांस्टेंट टैंपरेचर ते हुंदा है। अगर टैंपरेचर चेंज करांगे तो उत्थे ओहम्स लॉ वैलिड नहीं होएगा। ठीक है, तो V इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू I। आपां प्रपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगावांगे, प्रपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट लगावांगे, कांस्टेंट लगाया आपां ने R। तो इस प्रपोर्शनैलिटी कांस्टेंट नूं आपां डिनोट कर रहे हैं R दे नाल, ते R की है अपने कोल, रेजिस्टेंस। R इज रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट। तो V इज इक्वल टू IR, दिस इज ओहम्स लॉ। हाँ जी, R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो अगर आपां V ते I दे विच ग्राफ बनाने आ, जिवें जिवें आपां V इनक्रीज करदे आ I भी इनक्रीज करेगा, बट इस तरीके नाल इनक्रीज करेगा कि V ते I दे विच एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने। ते इस ग्राफ दी स्लोप तो आपां नूं की मिलदी है, रेजिस्टेंस। तो स्लोप इस ग्राफ दी आपां नूं R प्रोवाइड करदी है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। मगर आपां किसी भी पॉइंट दे उपर, जिवें इत्थों अपने कोल V दी वैल्यू देखी, I दी वैल्यू देखी, तो आप इस तो R फाइंड आउट करिए V अपॉन I करके। तो जिन्नी वैल्यू इत्थे आएगी R दी, उन्नी ही वैल्यू इस पॉइंट ते आएगी, उन्नी ही वैल्यू इस पॉइंट ते आएगी। तो हर एक पॉइंट ते R दी वैल्यू की होएगी, सेम होएगी। तो जो ओहम्स लॉ है उसनों सिर्फ ओहमिक डिवाइसेस ही फॉलो करदियां ने। तो ओहमिक डिवाइसेस दे विच ग्राफ हमेशा की बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बट जो नॉन ओहमिक डिवाइसेस ने, नॉट फॉलोड बाय नॉन ओहमिक डिवाइसेस, जो नॉन ओहमिक डिवाइसेस ने वो अपने कोल ओहम्स लॉ फॉलो नहीं करनगियां। हुण नॉन ओहमिक डिवाइसेस दे विच अगर आपां V ते I दे विच ग्राफ ड्रॉ करिए तो वो अपने कोल स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरीके का नहीं होएगा, ओरिजिन चों पास करदा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं होएगा, इस तरीके का भी हो सकता है कर्व ग्राफ, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, बट ओरिजिन चों पास करदा नहीं होएगा। देखो इत्थे तक आपां वोल्टेज इनक्रीज कर रहे हैं, बट करंट की आ रहा है, 0 आ रहा है। इस तो बाद अगर आपां वोल्टेज इनक्रीज करनी स्टार्ट की तो अपने कोल करंट की वैल्यू की हो रही है, इनक्रीज हो रही है। तो ये अपने कोल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है चाहे, बट ये ओरिजिन चों पास नहीं कर रहा। मीनस जदों V 0 सी उदों I 0 सी, बट जिवें जिवें V की वैल्यू इनक्रीज की, इत्थे सपोज V की वैल्यू 2 वोल्ट सी, बट I फिर भी 0 है। मतलब V दे इनक्रीज होने नाल करंट नाल दी नाल इनक्रीज होना नहीं स्टार्ट होया, किसी पर्टिकुलर V दी वैल्यू तक अपने कोल I की रहा, 0 रहा। तो अपने कोल इस टाइप दा ग्राफ जो कि चाहे स्ट्रेट लाइन है बट ओरिजिन चों पास नहीं कर रहा, इस टाइप दे ग्राफ नूं भी आपां नॉन ओमिक डिवाइसेस दा ग्राफ ही कहांगे। तो यह ग्राफ भी नॉन ओमिक डिवाइसेस दे ग्राफ नूं ही रिप्रेजेंट कर रहा है। नैक्सट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ दियां लिमिटेशंस डिस्कस करनियां ने आपां। ओहम्स लॉ दियां कुछ लिमिटेशंस ने। फर्स्ट है फेलियर फॉर नॉन ओहमिक डिवाइसेस। जो नॉन ओहमिक डिवाइसेस ने उन्हां दे लई आपां डिस्कस किया कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता, जो कि ओरिजिन चों पास करदा, उवें दा ग्राफ नहीं बनता। तो यह अपने कोल फर्स्ट लिमिटेशन है कि यह नॉन ओहमिक डिवाइसेस दे लई फेल हो जाता है लॉ। सैकेंड है नॉट वैलिड फॉर वेरिंग टैंपरेचर। आपां क्या सी सिर्फ फिक्सड टैंपरेचर ते एक कांस्टेंट टैंपरेचर ते ही इस ग्राफ, एक ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। बट अगर टैंपरेचर वेरी कर रहा है तो उत्थे एक लॉ वैलिड नहीं हैगा। थर्ड है अपने कोल इफ लार्ज करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट। अगर किसी भी सर्किट दे विचों ज्यादा करंट फ्लो करता है तो हीट प्रोड्यूस होएगी। हीट बिकॉज अपने कोल जाउल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हुंदा है। तो करंट वधेगा तो हीटिंग भी वधेगी। जिन्नी हीटिंग वधेगी उन्नी ही रेजिस्टेंस वधेगी, क्योंकि जदों कोई भी कंडक्टर ज्यादा उसका टैंपरेचर इनक्रीज हो जाएगा, किसी भी कंडक्टर का टैंपरेचर इनक्रीज होने दे नाल किसी भी मैटल कंडक्टर की रेजिस्टेंस की हुंदी है, इनक्रीज हुंदी है। तो जदों हीटिंग होएगी रेजिस्टेंस भी इनक्रीज होएगी। जदों रेजिस्टेंस इनक्रीज होएगी तो अपने कोल स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना बन के एक कर्व आएगी। देखो किवें V ते इत्थे अपने कोल है I, ठीक है। तो अपने कोल की होएगा, पहला अपने कोल V इनक्रीज हो रही है, I भी इनक्रीज हो रहा है, बट अपने कोल की होएगा
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਰੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ, ਹੀਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆਵੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਟ ਉਸਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਏਗਾ। स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए सी, अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो करंट नू भी इंक्रीज होना चाहिए सी बिकॉज ओमिक डिवाइसिस दे लई सी। ठीक है, तो अपने को इत्थे आपां सर्किट सैटिस्फाइंग ओहम्स लॉ की गल कर रहे हैं कि जो सर्किट पहला ओहम्स लॉ सैटिस्फाई कर रहा सीगा उसदे लई भी ये लॉ फेल हो जाता है। कदों फेल हो जाता है? जदों अपने कोल बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है उस पॉइंट ते आके। एक्सपैक्टेड तो ये सी बिकॉज ये ओमिक डिवाइस है, ओहम्स लॉ नू फॉलो कर रही है, बट जदों हीटिंग बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो रजिस्टेंस इंक्रीज होगी, रजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो चाहे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं करंट इंक्रीज होना बंद हो जाता है। इस तरीके नाल नहीं बनेगा ग्राफ, फिर इत्थे आके अपने कोल की बन जाएगी, कर्व बन जाएगी। तो किस केस दे विच फेलियर हुंदा है लॉ दा? जदों अपने कोल बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है किसी भी सर्किट दे विचों। ते नैक्सट है अपने कोल रजिस्टेंस। रजिस्टेंस देखो आपां नूं ये पता है कि रजिस्टेंस की हुंदी है ओपोजिशन ऑफर्ड बाय कंडक्टर टू फ्लो ऑफ चार्ज। हुण रजिस्टेंस दा एक्सप्रैशन की हुंदा है? देखो अपने कोल जो रजिस्टेंस हुंदी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि रजिस्टेंस जो भी कंडक्टर दी आपां फाइंड आउट करदे हां उसदी लेंथ दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हुंदी है ते उस कंडक्टर दे क्रॉस सैक्शनल एरिया दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुंदी है। तो आर इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। इन्हां दोनों नूं आपां अगर कंबाइन करदे हां तां आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनैलिटी हटा के आपां कांस्टेंट लगा दिंदे हां। कांस्टेंट है अपने कोल रजिस्टिविटी। जो रजिस्टिविटी हुंदी है ये हर एक मैटीरियल दी डिफरेंट हुंदी है। आयरन दी अलग होएगी, किसी भी होर मैटल दी, कोपर दी, एलूमीनीयम दी, हर एक दी रजिस्टिविटी अलग अलग हुंदी है बट ये लेंथ ते डिपेंड नहीं करती। रजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एल। अगर आपां किसी भी मैटीरियल दी 3 मीटर दी रोड लै रहे हां जां 5 मीटर दी रोड लै रहे हां तां रजिस्टिविटी सेम होएगी। ये मैटीरियल दी प्रॉपर्टी हुंदी है, लेंथ ते नहीं डिपेंड करती ना एरिया ते डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी हर एक मैटीरियल दी अलग हुंदी है। तो अपने कोल आर का दे इक्वल आ गया रजिस्टिविटी इंटू एल अपॉन ए। जो अपने कोल आर दे यूनिट्स हुंदे हैं, आर दे यूनिट्स हुंदे हैं ओहम, इस सिंबल दे नाल रिप्रेजेंट करदे हां। यूनिट एसआई यूनिट है ये, एसआई यूनिट ऑफ आर। तो हुण अगर आपां इत्थों रजिस्टिविटी दा एक्सप्रैशन फाइंड आउट करिए, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू रजिस्टेंस इंटू ए अपॉन एल। तो अपने कोल आर दे यूनिट्स की ने ओहम, ए दे यूनिट्स की ने मीटर स्क्वायर, एल दे यूनिट्स की ने मीटर। तो रजिस्टिविटी दे यूनिट्स की हो जाएंगे ओहम मीटर। तो ये अपने कोल रजिस्टिविटी है। जदों लेंथ ते एरिया दोनों 1-1 हो जान तो अपने कोल रजिस्टिविटी ते आर की हो जाएंगे इक्वल। तो रजिस्टिविटी किसी पर्टिकुलर एरिया दे लई ते लेंथ दे लई रजिस्टेंस दे इक्वल ही हो सकती है। तो इसनूं आपां कहने आ स्पैसीफिक रजिस्टेंस। रजिस्टिविटी भी कहने आ, स्पैसीफिक रजिस्टेंस भी कहने आ। स्पैसीफिक रजिस्टेंस क्यों कहने आ? क्योंकि ये किसी स्पैसीफिक कंडीशंस दे अंडर रजिस्टेंस दे इक्वल हो जाती है। तो रजिस्टिविटी और स्पैसीफिक रजिस्टेंस इसनूं आपां रो नाल डिनोट करदे हां। हाँ जी, नैक्सट है अपने कोल कंडक्टेंस। जिवें रजिस्टेंस आपां क्या सी ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ चार्ज की किन्नी अपने कोल जो रजिस्टेंस मिलती है किसी भी चार्ज नू, मतलब किन्ना चार्ज नू रुकावट मिलती है किसी भी कंडक्टर दे विचों पास हुंदे होए। कंडक्टेंस रजिस्टेंस दा इनवर्स हुंदा है। कंडक्टेंस मीनस किन्नी ईजीली कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर दे विचों पास हुंदा है। तां रजिस्टेंस ते कंडक्टेंस एक दूजे दा रेसिप्रोकल ने। C इज इक्वल टू 1/r। आर दा एक्सप्रैशन आपां फाइंड आउट कीता, इसकी वैल्यू आपां पुट करती तां ये अपने कोल कंडक्टेंस एक्सप्रैशन आ जाएगा। ते अपने कोल सी दे यूनिट्स की हो जाएंगे, कंडक्टेंस दे यूनिट्स हो जाएंगे ओहम इनवर्स बिकॉज ये रजिस्टेंस दा रेसिप्रोकल है, रजिस्टेंस दे ओहम हुंदे हैं तो ओहम इनवर्स और इसनूं आपां मोह नाल भी रिप्रेजेंट करदे हां। ठीक है, तो अपने कोल अगर आपां कंडक्टेंस 1/रो की गल करिए, रो इज रजिस्टिविटी तो अपने कोल 1/रो इज कंडक्टिविटी होएगा। जिस तरीके नाल रजिस्टेंस दा रेसिप्रोकल कंडक्टेंस है उसी तरीके नाल रजिस्टिविटी दा रेसिप्रोकल की होएगा कंडक्टिविटी। इसनूं आपां सिग्मा नाल डिनोट कर रहे हां। तो सिग्मा इंटू ए अपॉन एल, सिग्मा इज दी कंडक्टिविटी।
अगर आप सिग्मा का एक्सप्रैशन फाइंड आउट करिए तो सिग्मा अपने को C इंटू L अपॉन A दे इक्वल हो जाएगा। कंडक्टेंस दे यूनिट्स ओहम इनवर्स, L दे यूनिट्स मीटर, A दे यूनिट्स मीटर स्क्वायर। तो अगर मीटर नाल 1 मीटर कट जाएगा तो इसके यूनिट्स की आ जाएंगे ओहम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ये अपने कोल की है कंडक्टिविटी का एक्सप्रैशन है, तो ये अपने कोल कंडक्टेंस एक्सप्रैशन है। हाँ जी, जिस तरीके नाल अपने को रजिस्टेंस लेंथ ते भी डिपेंड करती है, एरिया ते भी डिपेंड करती है, टैंपरेचर ते भी डिपेंड करती है, ते मटीरियल दी नेचर ते भी डिपेंड करती है। तो जो रजिस्टिविटी है ये अपने को लेंथ एरिया इन्हां दे उपर डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ नेचर ऑफ मटीरियल ਦੇ नेचर ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਲੈਂਥ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਲੈਂਥ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਔਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ। ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਆਪਾਂ I ਤੇ VD ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ कि करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटी का की रिलेशन होंगे NEA इंटू VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होंगी है एक्सप्रैशन भी आप डिस्कस किया E इंटू कैपिटल E टो अपॉन M, E चार्ज, कैपिटल E इलैक्ट्रिक फील्ड टो अपॉन M। तो ये अपने को करंट ते ड्रिफ्ट वेलोसिटीज या वैल्यूज होंगे ने। नैक्सट देखो अपने को V इज इक्वल टू IR होंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू करंट इंटू रजिस्टेंस। करंट की वैल्यू आप पुट करती, करंट की वैल्यू पुट करके नैक्सट एक स्टैप देखो अपने को जो इलैक्ट्रिक फील्ड होंगे वो पोटेंशियल ग्रेडियंट दे इक्वल होंगे, पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। उस दे विच आपां पोटेंशियल की वैल्यू पुट करती, उस तो बाद आपां VD की वैल्यू भी इस दे विच पुट करती। हुण तुसीं देखो आपां इसनूं थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, R इंटू A अपॉन L ते बाकी अपने को बचा N इंटू E स्क्वायर, E इंटू टो अपॉन M। इलैक्ट्रिक फील्ड अपने को दोनों साइड ते कट गया। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ R इंटू A अपॉन L है ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ρ इंटू L अपॉन A ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ R इंटू A अपॉन L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ρ ਮੀਨਸ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ। ਤਾਂ R इंटू A अपॉन L ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ρ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, NE ਸਕੁਅਰ ਟੋ अपॉन M। ਤਾਂ ρ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। तो इस तरीके नाल देखो 1 बाय रो इज इक्वल टू NE स्क्वायर टो अपॉन M ते 1 बाय रो 1 बाय रजिस्टिविटी किस दे इक्वल हुंदी है, कंडक्टिविटी दी। तो ये अपने कोल एक्सप्रैशन फॉर कंडक्टिविटी, एक्सप्रैशन फॉर कंडक्टिविटी। सारियां टर्म्स भी क्लीयर होनियां चाहिए ने। N नंबर ऑफ चार्जेस, E चार्ज ऑन 1 इलैक्ट्रॉन, टो रिलैक्सेशन टाइम, M इज दी मास ऑफ चार्ज। नैक्सट है अपने को वैक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, और आप ये भी कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी इन वैक्टर फॉर्म। आप करंट डेंसिटी डिस्कस की सी, बट इसनों वैक्टर फॉर्म दे विच भी डिस्कस करना है, बिकॉज अपने सिलेबस दे विच ये भी मैंशन किया होया करंट डेंसिटी इन वैक्टर फॉर्म। ओहम्स लॉ दी वैक्टर फॉर्म या फिर करंट डेंसिटी दी वैक्टर फॉर्म सेम ही चीज है, ठीक है। हुण अपने कोल अगेन उस दे लई ओही चीज लैके चलांगे आपां करंट नूं। करंट इज इक्वल टू NEA इंटू VD। VD की वैल्यू की है N इंटू E इंटू A। VD की वैल्यू होंगी अपने को E इंटू इलैक्ट्रिक फील्ड टो अपॉन M। बार बार आप ये एक्सप्रैशंस डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि सबने वैल्यूज याद हो गया होंगियां। हुण अपने को देखो I अपॉन A, अगर अपन एरिया नू I दे डिवाइड दे विच लै गए तो I अपॉन A इज इक्वल टू NE स्क्वायर इंटू E टो अपॉन M बचा। I अपॉन A की हुंदा अपने कोल करंट डेंसिटी, NE स्क्वायर टो अपॉन M। हुण आपां इस एक्सप्रैशन डिस्कस किया कि NE स्क्वायर टो अपॉन M किस चीज दे इक्वल हुंदा, 1 बाय रो दे, 1 बाय रो या फिर आप कह सकते हैं सिग्मा दे। सिग्मा की है इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अगर इसमें वैक्टर फॉर्म च लिखांगे तो आ जाएगा J वैक्टर सिग्मा
इंटू ई वैक्टर। जे वैक्टर इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वैक्टर। तो ये अपने को वैक्टर फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी जो कि अपने सिलेबस दे विच मैंशन किया हुआ। आई होप अज वाले सारे एक्सप्रैशन थोनों समझ आ गए होंगे। तो अगर थोनों ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल नू लाइक शेयर एंड सबसक्राइब जरूर करो। थैंक यू।